ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ سب ایکٹیو ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ لک فارورڈ کر رہے ہوں گے ٹورڈز دا نیکسٹ لیکچر۔ نیکسٹ لیکچر جو ہمارا آج کا ہے کلاس 2، اٹس اباؤٹ فلسفی آف اسلام۔ یہ جو میں نے کورس ڈیزائن کیا ہے، جو میرا مینول کا پارٹ ہے، پلیز ریممبر کہ اس کے پیچھے کیا میری سوچ ہے۔ اس کے پیچھے جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا کسی نان مسلم سے یا کسی بھی شخص سے پالا پڑے تو آپ اس کو بہت کمپریہنسو وے میں، بہت اچھے انداز میں، آسن انداز میں، ایفیشینٹ انداز میں دین اسلام کے بارے میں بتا سکیں۔ اوکے، یہ ہمارا ویژن ہے آپ کے بارے میں، اور خود بھی آپ کو بہت کمپریہنسو مینر میں دین اسلام کے بارے میں پتہ لگے، اس کا فلسفہ پتہ لگے، اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں پتہ لگے۔ پریویس لیکچر کی طرف اگر ہم دیکھیں، اچھا اسی لیے جو کورس کنٹینٹ ہے اس کو سمجھ لیں۔ نمبر 1 میننگ آف اسلام، نمبر 2 فلسفی آف اسلام۔ ہمیں اسلام پسند ہے، ہم اسلام کو سبمٹ کرتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ 5 منٹ میں آ کر مجھے اسلام سمجھائیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے اسلام بہت زبردست مذہب ہے، بہت زبردست دین ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، انفارمیشن سکیٹرڈ ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں انفارمیشن جو ہے وہ سکیٹرڈ نہ ہو، سیکوینس کے ساتھ ہو۔ وائی اسلام، مین اینڈ یونیورس، امپیکٹ آف توحید آن ہیومن لائف، بلیف ان اینجل اینڈ جنس۔ ریکیپ، meaning of Islam. Islam is derived from the root word aslama, which means submission. Requirements of submission ہم نے پڑھی تھی۔ ایمان اینڈ اسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ڈگریز آف اسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ ریکوائرمنٹس آف اسلام کے حوالے سے کچھ میں آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو ریڈنگ اسائنمنٹ دی تھی، کتنے لوگوں نے بک لے لی؟ جی، میننگ آف اسلام، اٹس میننگ اینڈ میسج کتنے لوگوں نے پرچیز کی؟ خورشید احمد صاحب کی صرف 2 نے۔ وہ پڑھیں، ریڈنگ اسائنمنٹ ہے، کیونکہ میں نے آپ سے آج ڈسکس کرنا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ پیج 21 سے 31 تک میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی تھی۔ اگر آپ اس کو پڑھتے تو اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جو میں نے پڑھنے کے لیے دیا تھا، اس میں 3 چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ اسلام میں آنے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ان 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے: فیتھ، ایکشن اور ریئلائزیشن۔ سب سے پہلے فیتھ ہے کہ آپ ایمان لے کر آتے ہو، وہ فیتھ آپ کے دل میں پھیلتی ہے، گرو کرتی ہے، اور پھر اس فیتھ کی بیسس پہ یو ٹیک سم ایکشنز۔ ان ایکشنز کا پرفارم کرنے کے لیے یو نیڈ رولز اینڈ ریگولیشنز۔ اب فیتھ تو آ گئی ایک بندے میں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اب کرنا کیا ہے، تو پھر وہ ایک انکمپلیٹ پاتھ پہ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک گائیڈ لائن نہیں ہوتی کہ اب کرنا کیا ہے۔ اس گائیڈ لائن کے لیے شریعہ آئی ہے۔ شریعہ لٹرلی مینز اے واٹر ہول ویئر اینیملز گیدر ڈیلی ٹو ڈرنک۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں شریعہ کیا ہے اصل میں۔ شریعہ اصل میں عربک میں اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ جانور جو ہیں جمع ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ تو شریعہ کس لیے ہے؟ ہماری پیاس بجھانے کے لیے۔ کون سی پیاس؟ ہماری روح کی پیاس۔ اور جو انسان کو معراج دیا اللہ نے، جو سٹیٹس دیا، یہ جو پیاس ہے نا ستاروں تک پہنچنے کی، مارس میں آج کل بھیجنے، یہ انسان کی پیاس ہے ایکسپلوریشن کی۔ اور اس پیاس کو چیک کرنے کے لیے اور اس پیاس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، مزید اس کو ڈائریکشن دینے کے لیے شریعہ ہے۔ اوکے، سو دس از a big meaning of Sharia, very deep meaning of Sharia. آپ اس سے سمجھیں۔ اور the straight path as it is mentioned in the Quran, ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ یہاں پہ شریعتن سے مراد ہے the straight path، کہ believers اور prophet اس straight path میں ہیں۔ سو یہ آپ اسکیمیٹک ذرا سمجھ لیں، آپ کو اسلام کا پورا کنسپٹ سمجھ آ جائے گا۔ نمبر 1، اسلام میں پہلا سٹیپ ہے آنے کا سبمیشن۔ سبمیشن جب انسان کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی اسٹرائیونگ شروع ہوتی ہے، اس کی کوشش شروع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیپٹر 29 ورس 65 میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے راستے میں آنے کے لیے کیا کرے گا؟ اسٹرائیو کرے گا، تو ہم اس کے لیے راہ آسان کر دیں گے، کھول دیں گے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ سبمیشن کے بعد بات ختم ہو گئی۔ سبمیشن کے بعد بہت اسٹرائیونگ ہے، ہر چیز میں اسٹرائیونگ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری نماز میں لطف نہیں آتا، تو اس میں اسٹرائیو کرنا پڑے گا لطف لانے کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے اسٹرائیو کرنا پڑے گا۔ تو یہ اسٹرائیونگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ اسٹرائیونگ نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ اسکیمیٹک کو سمجھ لیں، پوری اسکیمیٹک ہے اسلام میں آنے کے حوالے سے۔ اسٹرائیونگ ود دا گائیڈنگ لائٹ آف ایمان۔ ایمان از لائک دا گائیڈنگ لائٹ، ٹارچ لائٹ ہے۔ آپ اندھیرے میں ہیں، آپ نے اس اندھیرے میں چلنا ہے۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے تقوی کی کیا ڈیفینیشن بتائی تھی کہ اٹ از لائک کہ تم ایک جنگل سے گزرے، وہاں پہ خاردار جھاڑیاں ہیں، وہ جھاڑیاں تمہارے کپڑوں کو پھاڑ کے رکھ دیں گی،
तो उन झाड़ियों से बच बच के गुजरने का नाम क्या है? तकवा। दुनिया में इसी तरह जिंदगी गुजारनी है। ये जो खारदार झाड़ियां, ये मुश्किलात हैं, ये चैलेंजेस हैं और अंधेरे हैं, दुनिया में अंधेरा है। द होल वर्ल्ड इज कर्स्ड एक्सेप्ट 3 थिंग्स। कौन कौन सी? जिक्र ऑफ अल्लाह, नॉलेज, और थर्ड सीकर्स ऑफ नॉलेज हो गए, जिक्र ऑफ अल्लाह हो गया, और तीसरी क्या थी? 3 चीजें ना, एक्सेप्ट दीज 3 थिंग्स एवरीथिंग इज कर्स्ड। स्कॉलर्स, नॉलेज हासिल करने वाले स्कॉलर्स, चलती फिरती नेमत। तो आपने स्ट्राइव करना है सबमिट करने के बाद, ठीक है? जो दीन में आ गए हैं अब वो ये ना समझें कि जान छूट गई है, बल्कि अब कोशिश का वक्त आ गया है, और वो कोशिश ईमान की दौलत से होगी। तो अपने ईमान को ग्रो करें। कोई यूथ अगर ये शिकायत करता है कि मेरे से फलाना गुनाह नहीं छूट रहा, तो वो ये देखे कि उसको छोड़ने की वो कोशिश कितनी कर रहा है, वो अपना ईमान बढ़ाने की कोशिश कितनी कर रहा है। अगर वो वही चीजें देख रहा है जिससे उसको ट्रिगर होता है, यानी कि ऐसी मूवीज देख रहा है कि 1 मिनट में ट्रिगर हो जाता है, अगर वो वही चीजें सुन रहा है जिससे ट्रिगर होता है, और उसके बाद वो नमाजें भी पढ़ रहा है और शिकायत एंड में ये कर रहा है कि मुझसे छूट नहीं रहा, तो फिर वो ये देखे कि उसने अपने ईमान बढ़ाने के लिए क्या किया है, क्या उसने वो चीजें छोड़ी हैं जो उससे ट्रिगर करती हैं। तो स्ट्राइविंग बहुत जरूरी है विद द गाइडिंग लाइट ऑफ ईमान। जितना ईमान की लाइट तेज होती जाएगी, आपके लिए स्ट्राइविंग आसान होती जाएगी। ओके, और फिर इंसान उस लेवल पे रीच कर जाता है जिसको क्या कहा है? इखलास। ओके, और ये स्ट्राइविंग किस लिए है? टूवर्ड्स द सिस्टम, टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर, टूवर्ड्स द लॉज, और इस पे स्ट्राइविंग करने को कहते हैं अमल। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये इस्लाम है। ओके, सूरह अल असर। सबमिट करो, ईमान लेकर आओ, और ईमान इनकम्प्लीट है विदाउट स्ट्राइविंग, विदाउट डूइंग अमल। तो अमल बहुत जरूरी है दीन इस्लाम में आने के लिए, ठीक है? ये हमारी स्कीमेटिक। अब थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ रिलीजन डिस्कस करते हैं कि दीन कब शुरू हुआ, इस्लाम कब आया, और इस्लाम किस तरह से इवॉल्व हुआ है। पहले आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए अंबिया का। कुरान में 25 अंबिया का जिक्र हुआ है, ओके, 25, बाकी बड़े अंबिया भेजे, लेकिन जिस तरह कुरान में जिक्र हुआ है उसका ऑर्डर ये है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलाम जो थे, ही वाज अ प्रॉफिट नॉट अ मैसेंजर। आदम अलैहिस्सलाम पे कोई बुक नहीं आई थी, ही वाज द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। उसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, और नूह अलैहिस्सलाम मैसेंजर भी थे, प्रॉफिट भी थे, और शरिया लेकर आए थे। हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इससे पहले पहले जो है वो सारे वो अंबिया हैं जो आप कह लें स्टोन एज, या जब हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री थी वो अभी तक बुतों की पूजा पे नहीं पहुंची थी। इस्लाम वाज इन देयर नेचर, फितरत पे थे। लेकिन उसके बाद जो है हमें ये पता, नूह अलैहिस्सलाम से पहले, सॉरी, नूह अलैहिस्सलाम से पहले, नूह अलैहिस्सलाम के एज में क्या हुआ है? बुत परस्ती शुरू हुई है, ठीक है? जो आइडल वर्शिप की हमें हिस्ट्री मिलती है वो नूह अलैहिस्सलाम की एज से हमें मिलती है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल निकली है। 2 बेटे थे ना उनके, हजरत इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो बनी इसराइल हजरत इसहाक जो कि इसराइल कहलाते हैं, और अरब्स जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से। और ये इमामुन नास हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और ये फादर ऑफ प्रॉफिट्स। लूत अलैहिस्सलाम इन्हीं के दौर के थे, और फरिश्ते आए थे ना अजाब देने, बशारत देने आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और दूसरी कौम को तबाह करने आए थे। तो लूत अलैहिस्सलाम इन्हीं के दौर के थे, और ये 5000 ईयर्स बिफोर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5000 साल पहले, ऑलमोस्ट तकरीबन 5000 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या गालिबन 2500 2000 का भी जिक्र आता है। बहरहाल इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर इसहाक। जी, लीनियज के नहीं थे लेकिन उन्हीं के दौर में थे, उन्हीं के टाइम के थे। हजरत लूत, ये मुझे नहीं पता, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। भतीजे थे, अच्छा। इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम। शोएब अलैहिस्सलाम की आप हिस्ट्री पढ़ें कि उनकी कौम को अल्लाह ने कैसे तबाह किया था। दे वर द पीपल ऑफ फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट, उनके बारे में आता है ना, गार्डन और फॉरेस्ट के इलाके से थे। मूसा अलैहिस्सलाम, वेरी पावरफुल मैसेंजर एंड प्रॉफिट। हारून अलैहिस्सलाम, जुल्किफ्ल, दाऊद अलैहिस्सलाम बाद में है मूसा के, और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सेवियर थे। उसके बाद फिर बहुत जलीलो ख्वार हुई बनी इसराइल। उसके बाद जो है दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अरूज दिया दोबारा बनी इसराइल को। जेरूसलम को एस्टैब्लिश करने वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम, जेरूसलम पीक पे था सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, ठीक है? इलियास अलैहिस्सलाम, अल यसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम बाद में है, काफी बाद में है। और उसके बाद जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से जो ताल्लुक है, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन के अल्लाह ने
यके बाद दीगर मैसेंजर्स को भेजा, प्रॉफिट्स को भेजा, और बहुत से प्रॉफिट्स को भेजा, बहुत से मैसेंजर्स को भेजा, लेकिन कुरान में इन 25 का जिक्र है। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैसेंजर किस कौम की तरफ आया, उसने क्या दावत दी अपनी कौम को, और क्या मसले मसाइल थे। बनी इसराइल की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको आप जरा पढ़ें कि इजिप्ट में वो क्यों चले गए, वो तो पैलेस्टाइन में थे, फिर इजिप्ट से वो निकाले गए, दोबारा वो पैलेस्टाइन में क्यों आए, अब दोबारा वो पैलेस्टाइन पे हावी हो गए। ठीक है, ये जो हमारे यहूदी हैं, बनी इसराइल की कौम है ना, तो उन्हें यही तप है कि हम यहाँ से निकाले गए थे, ये हमारा लैंड है, इसलिए वी हैव टू रिगेन दिस लैंड। जी, ये आपको इजीली मिल जाएगी विकिपीडिया पे। हाँ जी, ओके जी। आज इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है फिलॉसफी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम पे है। अच्छा, ये जो मैं आपको बताया ना, फेथ, एक्शन एंड रियलाइजेशन, जरा इस पे बात कर लेते हैं। देखें, दीन इस्लाम क्या है। सबसे पहले फेथ यानी कि आपका ईमान, देन एक्शन, उस ईमान की गाइडलाइन से, उसकी लाइट से यू टेक सम एक्शंस, यू स्ट्राइव। आपको नमाज पढ़ने के लिए क्या चीज उठाती है? फुटबॉल मैच लगा हुआ है, लेकिन आपको कोई चीज उठा देती है कि उठो और जाके नमाज पढ़ के, वो आपका ईमान है। ओके, जितनी वो लाइट स्ट्रांग होगी उतना आपको दिक्कत कम होगी स्ट्राइव करने के लिए, इसलिए उस पे काम करें। असल पे जो चीज है काम करने वाली, वो आपका ईमान है, आपका कल्ब है, क्योंकि ईमान कल्ब में रिजाइड करता है। उस पे काम करें तो हर चीज सीधी हो जाएगी, हर चीज आपके लिए आसान होती चली जाएगी, आपका माइंड सेट, आपके थॉट्स तब्दील हो जाएंगे। और रियलाइजेशन जो है ये है कि इंसान इखलास के लेवल पहुंचे, रियलाइज कर ले कि यही हक है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रियलाइजेशन की एग्जांपल आपको देता हूं। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबी रसूल, उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा कि अबू दरदा, अगर तुम्हें जला भी दिया जाए और टोटे टोटे कर दिया जाए तो भी शिरक ना करना, अल्लाह की तौहीद में तो भी कोई खलल ना आने देना, यहां तक कि तुम्हें बर्न कर दिया जाए और तुम्हारे टोटे टोटे टुकड़े कर दिए जाए तुम्हारे। ये है रियलाइजेशन। जब इंसान इतना पक्का हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है कि वो कहता है कि मुझे मार दें, मेरे टोटे टोटे कर दें, लेकिन इस चीज से मैं फिर नहीं सकता, और उस पर वो डाउट भी नहीं कर सकता। ये रियलाइजेशन वाली जो स्टेट है, दैट इज द स्टेट वी ऑल मस्ट स्ट्राइव टू अचीव। इसकी तरफ ही अल्लाह ताला ने कहा है ना, स्ट्राइव करो, आपस में मुकाबला करो इस तरफ जाने के लिए, क्योंकि जो इस तक पहुंच जाता है वो फिर एंजॉय करता है। और उससे पहले भी ये स्टेट है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये स्टेट नहीं है तो अमल ही नहीं करना, अमल तो करना है, चाहे नमाज में मजा आए या ना आए, नमाज तो पढ़नी है, क्योंकि उसका जवाब तो देना होगा। लेकिन दिस इज द पिनिकल, ये विजन दिया अल्लाह ने कि यहां पे पहुंचना है तुमने, और ये वो जगह रियलाइजेशन, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से राजी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है ये। ओके, तो मैंने आपको बताया कि एक्शन के लिए नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन शरिया कहलाती है। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, फिलॉसफी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। अगर आपसे कोई गोरा पूछे या आपसे कोई आपका दोस्त पूछे कि यार इस्लाम है क्या, मुझे समझा दो इस्लाम क्या है, इसका फलसफा क्या है, ये क्या चाहता है इंसानों से, तो आप क्या जवाब देंगे? क्विकली, व्हाट इज इस्लाम? आप उसे क्या एक्सप्लेन करेंगे? क्या है इस्लाम? क्या है? रिलीजन ऑफ अल्लाह, वे ऑफ लाइफ है। ओके, और इसका क्या फलसफा है, ये क्या चाहता है, ये क्या कहता है? ओके, पर्पस ऑफ क्रिएशन। देखिए, हर चीज का एक फलसफा होता है। इस क्लास का एक फलसफा है, इस क्लास से आपको क्या क्या मिलेगा, इसका एक फलसफा, उस फलसफे की बेसिस पे ये क्लास शुरू की गई। तो दीन का भी कोई फलसफा है ना, दीन की भी कोई फिलॉसफी है कि दीन आपसे क्या चाहता है और दीन किस तरह व्यू करता है तमाम चीजों को। दीन का वर्ल्ड व्यू क्या है, बर्ड्स आई व्यू क्या है, लाइफ के बारे में, इंसानों के बारे में और मुख्तलिफ चीजों के बारे में इस्लाम का क्या व्यू है। इंशाल्लाह आज हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले बेसिक मोस्ट फिलॉसफी जो आपने बतानी है किसी को, कि मैं आपको समझाता हूं कि रिलीजन है क्या। सबसे पहले रिलीजन में हमें ये कहा जाता है कि क्रिएटर है, तुम खुद नहीं बनाए गए, तुम्हारा एक क्रिएटर है, तुम्हारा एक मास्टर है जो रब्बुल आलमीन है। तुम लोग फ्री नहीं हो, तुम लोग जिम्मेदार हो, तुम लोग आंसरेबल हो उसको। ये सबसे बुनियादी फलसफा है दीन का, इसके बगैर दीन कोलैप्स्ड है। जो शख्स ये कहे कि मैं किसी क्रिएटर पे बिलीव नहीं करता तो वो कोलैप्स हो गया, उसका सारा अकीदा कोलैप्स हो गया। तो ये बेसिक बुनियादी चीज है। द फर्स्ट प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम दैट डेवलप्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ इट्स फिलॉसफी इज द रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव अ क्रिएटर। रियलाइजेशन, दिल से। यही तो वो लोग हैं ना जो कामयाब हैं, जो अल्लाह को देखा नहीं लेकिन दे रियलाइज देयर इज अ गॉड।
Allah subhanahu wa ta'ala states in the Quran, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un." Kaifa takfurun, किस तरह तुम डिसबिलीव कर सकते हो बिल्लाहि, अल्लाह पे, व कुंतुम अमवातन, जबकि तुम देखते हो तुम मरे हुए थे, फाहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदगी दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और तुमने उसी की तरफ पलट किया। आए भी वहां से हो, जा भी वहां पे रहे हो, तो फिर ये क्या बात हुई कि अल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्या तुमने खुद अपने आप को क्रिएट किया? आर यू द क्रिएटर ऑफ योरसेल्फ? ये भी अल्लाह ने पूछा है कुरान में। या तुम्हें क्रिएट किया गया? आंसर, क्या तुमने खुद चूज किया है मुसलमान बनोगे या काफिर बनोगे, या ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चॉइस है? जब तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है, जब हर चीज अल्लाह की तरफ से आ रही है और हर चीज ने रिटर्न भी अल्लाह की तरफ से होना है, तो ऐसी एंटिटी को कैसे इग्नोर कर सकते? इससे बंदे की रियलाइजेशन स्ट्रांग होती है। आपको पता है कि सबसे एब्सर्ड, एथिज्म इज द मोस्ट एब्सर्ड थ्योरी इन द होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स। एथिज्म जो है ये कभी भी किसी दौर में इतने अरूज पे नहीं आई जितना इस वक्त उरूज पे है। क्यों? क्योंकि एथिज्म बेसिकली इज द फिलॉसफी ऑफ डिजायर्स। एथिज्म खुदा का रद्द क्यों करती है? क्योंकि खुदा ने सैंक्शंस लगाए हैं, और एथिज्म जो है वो खुदा से एक छुटकारा चाहती है। आपको पता है कि कुरान में अल्लाह ने एथियस्ट को इतनी लिफ्ट नहीं कराई, कुरान में अल्लाह ताला ने एथियस्ट को इतना एड्रेस नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये एक जहनी मसला है, ये एक इंटेलेक्चुअल मसला है ही नहीं। उस वक्त के भी लोग जो थे उन्हें भी पता था खुदा एग्जिस्ट करता है, अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है। बड़े इक्के दुक्के होंगे जो कहते थे कि नहीं, अल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए दिस इज वेरी अब्सर्ड, दिस इज आउटरेजियस। अब ये साइंटिस्ट भी बात मान रहे हैं, बड़े बड़े फिजिशियन जो हैं वो इस पे आ गए हैं। मिशियो काकू जो है, और वो दूसरा जो ब्लैक है, क्या नाम है उसका, नील डी ग्रासे टाइसन, वो एग्नोस्टिक हैं दोनों, वो एथियस्ट नहीं है। वो ये मानते हैं कि यस देयर इज समथिंग। बल्कि साहिल जिनका का लेक्चर है 11-3, वो अभी हमें बता रहे थे कि रिचर्ड डॉकिंस ने भी 2-3 बार ये एक्नॉलेज किया है कि यस मे बी, लेकिन अब इट्स टू लेट फॉर हिम, मे बी, अब वो इतना आगे जा चुका है। सो ये बहुत एब्सर्ड है कि बंदा क्रिएटर का ही नेगेशन कर दे। इट्स जस्ट लाइक नेगेटिंग कि मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर नहीं है। इट्स जस्ट लाइक आप ये डिनाई कर दें। आपका होना इस बात का प्रूफ है कि आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर भी थे, इवन दो उनकी कोई तस्वीर नहीं है, उनको आपने कभी नहीं देखा, उनकी हड्डियां भी आपके पास नहीं है, कोई प्रूफ आपके पास नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स का होना ये प्रूफ है कि उनके क्रिएटर मौजूद है। ओके, सो ये पहला फलसफा है कि क्रिएटर है जिसने क्रिएशन की है, और उसी को पता है कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। इससे आपकी वो सारा व्यूज क्लियर हो जाएंगे कि चूंकि क्रिएटर है तो ही विल टेल मी हाउ टू स्पेंड लाइफ। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने गाफिल कर दिया तेरे रब से, जिसने कि तुझे बनाया है और जिसने कि तुझे गाइड किया है और जिसने तुझे प्रोपोर्शन में सेट किया है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा। तुझे बना के छोड़ नहीं दिया, क़द्दरा तेरा मेजरमेंट की है, तेरे हिसाब किताब लगाया है कि तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उसके मुताबिक तेरी किस्मत तकदीर लिखी है। फ़हादार तुझे गाइड कर रहा है, मुसलसल गाइड कर रहा है, बना के छोड़ नहीं दिया। दिस इज अल्लाह, दिस इज द क्रिएटर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नंबर 2, जो दूसरा बुनियादी फलसफा है दीन का, वो ये है कि चूंकि एक क्रिएटर है तो गुजारा जिंदगी का नहीं है सिवाय इसके कि सबमिट कर दिया जाए उसको। दिस इज ऑपोजिट टू थीइज्म। थीइज्म क्या है? थीइज्म ये है, थीइस्ट कौन होता है? वो ये होता है, वो कहता है कि खुदा तो है लेकिन ही हैज नथिंग टू डू विद। तो दीन का फलसफा नहीं है ही हैज नथिंग टू डू विद अस। चूंकि वो है, he has everything to do with us because he is our caretaker, guardian, nourisher, cherisher and he loves us and we are his creation. तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि अब he is resting over there. बहुत से जो सेकुलर क्रिश्चियंस हैं उनका यही अकीदा ना कि गॉड ने सब कुछ बना दिया, नाउ ही इज रेस्टिंग ओवर देयर। अब उन्हें कोई ये सरोकार नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे चल रही, पॉलिटिक्स, फलाने का क्या मसला है, फलाने का, बस वो बना के अब रेस्ट मार रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये हमारा अकीदा नहीं है। अल्लाह हैज एवरीथिंग टू डू विद अस और ही वांट्स दैट वी सबमिट, और सबमिट करके हमें क्या मिलेगा, उसके क्या क्या फायदे हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे वाई रिलीजन में जाके, ठीक है। Once we have acknowledged the fact that we are a creation of supreme being, it necessitates that we must submit ourselves to his pleasure and will. Allah subhanahu wa ta'ala enjoys in the Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." कह दीजिए रब्बिल आलमीन, कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। सबमिशन कि जो भी मैं कर रहा हूं फॉर हिज सेक कर रहा हूं, आई वांट टू प्लीज हिम। और बॉलीवुड क्या कहता है?
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते और तेरे बिना क्या जीना, वो ये कहता है। जबकि अल्लाह ताला वो कुरान में कह रहे हैं सूरह मारिज में कि इसकी साहिबी, इसकी गर्लफ्रेंड या इसकी वाइफ क़यामत वाले दिन कहेगी अल्लाह इसे जहन्नम में डाल दो, मुझे छोड़ दो। ओके, सो फॉल्स कॉन्सेप्ट हमें समझाए जा रहे हैं। हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए, ये फलसफा है दीन का। जो इस फलसफे को पहुंच गया उसको जिंदगी गुजारने का लुत्फ आ गया। अभी मैं सहाबा की एग्जांपल आपको देता हूं कि वो किस तरह इस फलसफे को समझे थे। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक्की फअबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, बेशक हमने किताब तुम पर नाजिल की है हक के साथ, इसलिए फअबुदिल्लाह, अल्लाह के बंदे बन जाओ, मुखलिसन, इखलास के साथ, मुखलिस होते हुए, लहुद्दीन, इस दीन के लिए। इखलास, सबमिशन, जिसमें इखलास नहीं है उसने दिल से सबमिट नहीं किया। जो अल्लाह पे शक कर रहा है वो फिर किस तरह का इखलास हुआ? ओके, तो ये नेगेशन है थीइज्म का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बहुत से सेकुलर मुस्लिम्स भी इस चीज के कायल है आजकल कि अल्लाह ने बना दिया, सब कुछ कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी, अब हम करेंगे सब कुछ। तो इस्लाम में ऐसा कोई नहीं है। चिड़िया भी पर नहीं मार सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। नंबर 3, लाइफ इज अ टेस्ट। ये फलसफा है दीन। दीन इस चीज का कायल है कि लाइफ एक एंजॉयमेंट की जगह नहीं है, एक ऐसा अबोर्ड नहीं है जहां पे परफेक्ट हैप्पीनेस है, जहां पे जो है वो तुम्हारे लिए परफेक्शन है, जन्नत नहीं है। जी जी नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि आप जो भी करें वो आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक करें। ये सबमिशन आप अपने लिए करें। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बीवी को खाना भी खिलाता है, एक नवाला भी खिलाता है टू प्लीज अल्लाह सुब्हाना व तआला, तो वो भी इबादत है। इसका मतलब नहीं हम रोबोट्स बन रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो गाइडलाइन है हम उसके मुताबिक कर रहे हैं, उस गाइडलाइन पे सबमिट करना है और वो हमारे लिए फायदेमंद है। उसको आप ये सब्बी इस्मा रब्बिकल आला से समझाएंगे कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें याद कर रहा है, वो जानता है तुम क्या कर रहे हो। वो सिर्फ बना के छोड़ नहीं दिया उसने, तुम्हें उसको सबमिट करना है, उसके साथ कनेक्ट करना है। थीइज्म को रद्द करेंगे ना कि अल्लाह ताला तुम्हारी फिक्र करता है, अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया है, तुम्हें प्रोपोर्शन में रखा है और तुम्हें गाइड कर रहा है। तो अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम अल्लाह के पास जाओ उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। तुम नमाज अदा करो, क्योंकि नमाज शुक्र का एक कह लें कि शेप है। इट्स वन ऑफ द वेज टू डू शुक्र टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत कुछ दिया। इस तरह से हम उससे बात करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तुम नहीं जानते। लाइफ इज अ टेस्ट, ये तीसरा पॉइंट है फिलॉसफी ऑफ इस्लाम के हवाले से कि इस्लाम इस चीज का कायल है, दीन इस चीज का कायल है कि दुनिया जो है ये जाहे पना नहीं है, दुनिया अबोर्ड नहीं है, फाइनल अबोर्ड। दुनिया से हमने जाना है और दुनिया में जो कुछ भी हम करेंगे दुनिया का वो अमाल हमें फ्यूचर में जाके हेल्प करेंगे। देखें, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ड्यूरिंग द टेस्ट, मैं आप सबका टेस्ट ले रहा हूं और मैंने आपको एमसीक्यूज दिए हुए। अब ड्यूरिंग द टेस्ट अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर इस एमसीक्यू का क्या आंसर है, तो मैं जवाब दूंगा। अगर मैं जवाब दूंगा तो फिर दूसरों के साथ इनजस्टिस है। तो ये उस चीज का जवाब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वक्त हमारा, अभी हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, इफ देयर इज अ गॉड व्हाई देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, तो द एग्जामिनर इज साइलेंट बट ही हैज गाइडेड यू, ही हैज टोल्ड यू। वो सब कुछ नाजिल कर चुके हैं, रिसोर्सेज दे दी उन्होंने, पानी दे दिए, नबातात दे दिए। अब ये ह्यूमन बींग्स का करना कराना कि उन्होंने जो है इम्बैलेंस क्रिएट किया उसमें, बट फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ देख रहे हैं और मदद भी करते हैं। Life is a test. Once we have acknowledged the fact that we are a creation of a third fundamental concept, the realization of the fact that the life we are endowed with is in fact a form of test from the Creator. चूंकि ये टेस्ट है, इसको जाया नहीं करना, जिंदगी को जाया नहीं करना, वरना फेल हो जाएंगे अगर इस इम्तिहान को अच्छे तरीके से नहीं लेकर चले। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बेशक हमने जिंदगी और मौत इसलिए बनाई है ताकि हम तुम्हारा टेस्ट ले सकें कि तुम में से अच्छे अमाल करने वाला कौन है। तो खा ले पी ले जी ले, जो कोका कोला कहता है उसका रद्द है। ठीक है, अल्लाह ताला ने नहीं कहा खा ले पी ले जी ले, अल्लाह ने कहा कि जिंदगी एक इम्तिहान है और इसमें तुम्हारा टेस्ट होगा, और जो उस टेस्ट में पास होगा वही फिर अल्लाह ताला का प्लेजर जो है सीख करेगा।
یہ تو کئی بار ہم سوال ایڈریس کر چکے ہیں. اللہ کو جو رزلٹ پتا ہے وہ اس لیے پتا ہے کیونکہ اللہ کا ایٹریبیوٹ عالم الغیب والشہادہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیسٹ میں زبردستی ڈال دیا. یہ آپ نے ہی اوپر کہا تھا. اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے, تو ہم سب نے کہا تھا ہم لیں گے. اس لیے اب یہاں ہم آ چکے ہیں, پھنس گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں کہتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں تھا انہوں نے کیا کہہ دیا. سورہ احزاب کیا ہے کہ جاہل لوگ ہیں, فولش ہیں, انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کس چیز میں آ رہے ہیں. اب چونکہ آ چکے ہیں, ہماری مرضی تھی, اللہ نے ہم سے پوچھا تھا. یہ قرآن کا فلسفہ. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں ٹیسٹ کیوں. میں آپ کو کہوں یہاں پہ کہ ہاں جی کل جو ہے وہ اسائنمنٹ کون تیار کرے گا, تو آپ کہیں میں کروں گا, اور کمرے کے باہر جا کے آپ کہیں کہ مجھے تو یاد ہی نہیں, میں نے کب کہا اسائنمنٹ میں تیار کروں گا, اور یہ سر نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا اسائنمنٹ تیار کرو. اٹس جسٹ لائک دس. اب یہ ٹیسٹ ہے, میموری اریز کر کے بھیجا ہے بچے کی, یہی تو ٹیسٹ ہے. اور پھر اس کو یاد کرانے کے لیے قرآن نازل, انبیاء کو بھیجا, میسنجرز کو بھیجا, یہی تو ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور روحیں ریکگنائز کر لیتی ہیں. اللہ نے کہا نا کہ وہی کو وہ لوگ کیسے ریکگنائز کرتے ہیں, صحابہ, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ گواہی روح گواہی دے رہی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا ہم وہاں پہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اوکے, تو چونکہ لائف ایک ٹیسٹ ہے اس لیے اس کو ٹیسٹ کی طرح گزارنا ہے. زندگی کا فلسفہ یولو نہیں ہے, یو اونلی لیو ونس. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے تاکہ اس کو ٹیسٹ کریں, اور اس کو ہم نے سماعت دی ہے اور اس کو بصارت دی ہے. یہ اسی لیے تاکہ وہ ریکگنائز کرے چیزوں کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آپ یقین کریں کہ جو شخص سبمیشن کا کنسیپٹ سمجھ جائے, سبمیشن ہوتی کیا ہے. میں آپ کو صحابہ کی سبمیشن اب بتاتا ہوں کہ, اور ریئلائزیشن ان کا اخلاص بتاتا ہوں آپ کو. مصعب بن عمیر کی سٹوری اگر آپ سمجھ جائیں نا, ان کی سٹوری کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پورے سبمیشن کا کنسیپٹ سمجھ آ جائے گا. مصعب بن عمیر ایک نوجوان صحابی تھے مکہ میں, جن کی ڈریسنگ, جن کا پرفیوم, جن کے جوتے پورے مکہ میں مشہور تھے. اور وہ صحابہ جو پہلے مشرک تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ ایک بار مدینے میں مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے تو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, تو صحابہ رونے لگ گئے مصعب بن عمیر کی حالت دیکھ کے, کیونکہ انہیں یاد آ گیا کہ یہ بچہ جو ہے کسی دور میں ہم اس کے کپڑوں کے برانڈز کی اگزامپل دیا کرتے تھے کہ اس کے کپڑے چیک کرو کتنے کلرفل ہیں, اور اس کے جوتے چیک کرو, اور اس کی خوشبو چیک کرو. تو ویسے ہی سوال پوچھنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, صحابہ کی آنکھوں. اس لیے نہیں کہ بیچارے کے ساتھ ہوا کیا ہے, بلکہ کس لیے, اس لیے کہ دیکھو اس کی سٹرگل, دیکھو اس بچے کی, اور یہ اس کی سٹرگل سے تو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں, پتہ آپ, ایتھوپیا بھی اور مدینہ بھی. اور اپنی ماں کو جاتے ہوئے پتہ کیا کہہ کے گئے تھے, ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اگر تم گئے تو آئی ڈس اون یو. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں, اب آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, اور میں آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کروں گا. اپنی والدہ کو یہ الفاظ کہہ کے گئے. ان کی والدہ نے کہا آئی ڈس اون یو, نکل جاؤ یہاں سے. یہ قربانی ہے مصعب بن عمیر کی, اور جنگ بدر میں شریک تھے. اور جنگ احد میں جب ان کی شہادت ہو رہی تھی مصعب بن عمیر کی, تو ان کا رائٹ ہینڈ جب کاٹا ہے مشرک نے, تو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. پھر دوسرا کاٹ دیا, تب بھی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اپنے سینے سے لڑنے لگ گئے, اپنے سینے کو آگے کر دیا, تو اس نے جو ہے ان کے سینے میں نیزہ گھونپ دیا. اور جب سینے میں نیزہ گھونپا ہے تو پھر ان کو فکر یہ تھی, صحابہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم نے مصعب بن عمیر کی لاش کو دیکھا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریشان ہے کہ نبی کہاں ہے. یہ ان کی سبمیشن. اپنی نہیں نیزہ پڑ گیا تو اس یہ فکر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کی آنکھیں یہ بتا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں اور اس وقت میرے نبی کس حالت میں ہوں گے. تو یہ مصعب بن عمیر. اور مصعب بن عمیر کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وہ جو ان کا جو کپڑا تھا, اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے, کفن, اگر اس سے ٹانگیں جو ہے وہ ڈھکتے تھے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا, چہرہ ڈھکتے تھے تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا, یہ آیت ریسائٹ کی, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا واللہ علیہ. یہ آیت ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 23. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, among the believers there are men who came true to the covenant they had with Allah. بے شک مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے اللہ سے عہد کیے پہ پورے اتر گئے. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی میں آپ کو لائف بتا دوں. تو یہ وہ لوگ تھے جو پہنچ چکے تھے, ریئلائزیشن کر چکے تھے. وہ کہتے تھے کہ کپڑے پھٹ جائیں, جو مرضی ہو جائے, دین نہیں جانا چاہیے. یہ جو چیز مل گئی ہے نا ہمیں, پاور جو مل گئی ہے, یہ جو کلمہ ہم نے پڑھ لیا, جو مرضی ہو جائے, زندگی کا بڑے سے بڑا لاس ہو جائے, کوئی لاس اتنا بڑا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پھرنے کا لاس. دس از واٹ از کالڈ سبمیشن اینڈ ریئلائزیشن. اور جس دن ہم سبمٹ کر دیں گے ہمارے زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہماری ساری لڑائیاں کس لیے ہیں, کیونکہ اپنے ویوز دے رہے ہیں. وہ ٹی وی میں جتنے بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, آج تک کوئی سولوشن دیا انہوں نے,
वो जितने प्रॉब्लम है उतने ही जो है ना वो एनालिस्ट हैं और उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही। तो ये हर चीज इस तरफ कॉल करी कि सबमिट कर दो, तुम्हारे मसले अल्लाह ने हल करने, मसले हल हो जाएंगे। खानदानों के झगड़े कब हल होंगे? एक बंदा बैठता है, दूसरा बैठता है, वो अपनी बात करता है, अपनी बात करता है, दूसरा, मसला कभी हल नहीं होता। मसला तब हल होगा जब उन्हें बताया जाए नबी ने कह दिया, जब नबी ने कह दिया तो बात खत्म होगी। फिर ये नहीं कहना तुम अपने फायदे की बातें ला रहे हो या ये कर रहे हो या वो कर रहे हो, जब नबी ने बात कर दी तो बात खत्म। जब कुरान की आयत आ गई, अल्लाह की बात आ गई, तो बात वहां खत्म हो जानी चाहिए। और ऐसे लोगों को फिर अल्लाह दर्जात देते हैं, बढ़ाते हैं इन लोगों का दर्जा। सो अंडरस्टैंड दिस, लाइफ इज अ टेस्ट। और यहाँ पे मौज मारने नहीं आए हैं। सहाबा अगर मौज मारते तो दीन हम तक यहाँ नहीं पहुंचता। और अल्लाह ने उनको टेस्ट किया है खौफ से। किस चीज का खौफ? मक्का छोड़ने का खौफ, फैमिली छोड़ने का खौफ, मर जाने का खौफ। ये टेस्ट किया है सहाबा को। जब टेस्ट हो गए, पक्के हो गए, फिर आए हैं दीन, फिर वो टीम बनी है वलजू। और किस चीज का खौफ? भूख का खौफ। किस किस तरह की भूख का टेस्ट किया गया? शीबे अबी तालिब, बनु हाशिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी, चमड़ा पिघला कर चबाया करते थे साहब, वहां पे जो बनु हाशिम के लोग थे। और बच्चों के रोने की आवाज दूर दूर की वादियों, 3 साल। और जंगे खंदक, अहज़ाब और उसके बाद तबूक, किस किस तरह भूख के फाके किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने। मिनल अमवाल, और वेल्थ से, और अनफुसी, तुम्हारी अपनी जानों के लॉस से, वस्समरात और फ्रूट, और बशर साबिरीन, और बशारत दे दो साबिरीन को कि वो कामयाब है। तो द टेस्ट, उसके बाद अगला जो फलसफा है दीन का वो है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में हम आए हैं, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। ये नहीं है दीन का फलसफा। ये नहीं है एक पल का जीना फिर तो है जाना। ये नहीं है दीन का फलसफा जो हमें बॉलीवुड बताता है। बल्कि दीन का फलसफा ये है कि यहाँ पे आए हैं तो कुछ बड़ा करके जाओ, ताकि अगले वर्ल्ड में तुम्हारे लिए सदका जारिया बने। जो शख्स ये सोच के जिंदगी गुजारता है वही कामयाब है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको पता है उनके ऐसे ऐसे अमाल हैं, उलमा कहते हैं, जो किसी को नहीं पता। इब्ने मसूद ने ऐसे नहीं कहा था दुनिया के 3 अक्लमंद तरीन इंसान, उनमें से एक अबू बकर है। मस्जिद नबवी किसकी वक्फ है? ये हमें वहां जाके अरबी स्कॉलर ने बताया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। जो भी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा है सवाब अबू बकर को जाता है रज़ियल्लाहु अन्हु। और हजरत उमर को जो कैलिफ बना के गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक। और ऐसे ऐसे अमाल हैं जो किसी को भी नहीं पता। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने सबका एहसान लुटा दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या क्या कुर्बानियां हैं सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये है बेसिकली दीन का फलसफा। अगला पॉइंट है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। जिंदगी में भी जो चीज चल रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पे, अकाउंटेबिलिटी की बेसिस पे। आपको हर जगह से धक्के पड़ेंगे, हर जगह से निकाल दिया जाएगा अगर आप अकाउंटेबिलिटी पे नहीं चल रहे। कोई नहीं आपको रखेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं अपना खुदा खुद हूं, नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर आप कहीं नहीं चल सकते। जब कहीं नहीं चल सकते दुनिया में, तो अल्लाह के यहाँ कैसे चल सकते? ओके, सो ये हमारा फलसफा है कि हमें टेस्ट चूंकि किया जा रहा है इसलिए हम अकाउंटेबल हैं। अल्लाह कहते हैं कि क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि तुम लोग किसी को अकाउंटेबल नहीं हो और तुम लोग हमारी तरफ जो है पलट कर नहीं आओगे। अफा अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसे सुदा छोड़ दिया गया? जैसे भेड़ बकरियों को नहीं छोड़ देता गडेरिया कि इधर उधर जहां मर्जी मुंह मारते फिरो। तो इंसान को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया कि वो जहां मर्जी मुंह मारते फिरे, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे। और आजकल हम लोग यही कर रहे हैं, अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं, वक्त को बर्बाद करते हैं, अपने जो है वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंचे और हम समझते हैं हमें फायदा हो रहा है। तो जिंदगी अल्लाह ने हमें हिफाजत करने के लिए दी है। कल को ये हाथ जो है ना ये खड़ा होकर गवाही देगा आपके खिलाफ, और मेरी आंखें गवाही देंगी, मेरी टांगें गवाही देंगी कि अल्लाह इस खबीस ने हमें जो है हमसे काम करवाया। ये जो नफ्स है, हम तो ये करना ही नहीं चाहते थे, हम आपके आगे सबमिट करते थे क्योंकि हमें पता था वी आर अकाउंटेबल टू यू। लेकिन इसके अंदर की जो खबासत थी और शैतान के वसवसे में आके इसने हमसे ये काम करवाए। सुबह जब होती है ना तो सारे लिम्स किससे पनाह मांगते हैं? पढ़िए आपने हदीस, जुबान से, टंग से। वो कहते हैं कि खुदा के लिए हमारा कुछ भला करो, हमारा ख्याल करी भाई, कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमें भी फंसा देना इस चीज। तो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। जब भी इंसान अकाउंटेबिलिटी को सोच के जिंदगी गुजारेगा उसका माइंडसेट ही बदल जाएगा। देखें, दीन का फलसफा जो समझ गया उसका जिंदगी गुजारने का तरीका ही बदल गया। आपको क्यों लगता है कि वो लोग लॉस्ट क्यों हैं? क्योंकि फलसफा ही कुछ और है। उनको अगर इस तरह से शुरू से बताया गया होता तो जिंदगी गुजारने का तरीका ही कुछ और होता। इसलिए बच्चों को बचपन से ये फलसफा सिखाना चाहिए, दीन का फलसफा, और आपको भी शुरू से बातें पता होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ,
वलतंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, और हर सोल ये देख ले कि अगले आने वाले दिन के लिए उसने क्या किया है। मौत का किसी को नहीं पता, कल मैं यहाँ हूँ कि नहीं हूँ, अभी क्लास से बाहर जाने के बाद हूँ, आप हैं कि नहीं है, किसी को नहीं पता। तो देख लो कि कल रेडी हो अल्लाह से मिलने के लिए। अगर अभी चले जाते हो तो क्या है, प्रेजेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो पहले से अल्लाह ने हमें ऑन गार्ड कर दिया है कि प्लीज बी ऑन गार्ड, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और फिर कल को हम ये जवाब नहीं दे सकते हमें तो पता ही नहीं था, ला अदरी ला अदरी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, अपने और अपने घर वालों को बचा लो। अल्लाह कोई बात कह रहे हैं तो वो सीरियस है। अगर मैं आपको कहूँ कि बच जाओ, ठीक है ना, तुम पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, मैं वार्न कर रहा हूँ तुम लोगों को, बच जाओ और अपने घर वालों को भी बचा लो, तो आप सीरियस लेंगे। सर ने बात की है तो अल्लाह, व्हाट अबाउट अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब वो कह रहे हैं कि बच जाओ, मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। नेक्स्ट फंडामेंटल जो हमारा प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चूंकि अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है और ये एक तोहफा है हमारे लिए, अल्लाह ताला हमें जानवर भी बना सकते थे, अल्लाह आपको मुशरिक भी बना सकते थे, तो अब चूंकि हमें अल्लाह ने वो कौम बना दिया जो उम्मतन वसता है, उम्मतुन वसता का भी कभी कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, तो इसलिए अब आप लोगों पे जिम्मेदारी आयद है कि आप लोग अच्छी हरकतें करें, ह्यूमन डिग्निटी से नीचे ना गिर जाएं, वो काम ना करें जो आपको ज़ेब नहीं देते, अपने आप को रियलाइज करें हु यू आर, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया, अब वो शुक्र करे या कुफर करे ये उस पे है, अल्लाह ताला जबरदस्ती नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट एंड फाइनल, अजान के वक्त कर सकते हैं बात। हदीस में जो है ना वो जो है आता है कि अजान के वक्त चुप हो जाओ, हदीस ज़ईफ है, लेकिन जवाब देना ज़रूरी है, इसलिए आप जवाब जो है वो देते जाएं। तो अगला है इस्लाम इज़ अ मर्सी टू द वर्ल्ड। ये फाइनल फलसफा जो मेरे नज़दीक है, शुरू से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, दीन में पहला फलसफा दीन का ये है कि क्रिएटर है। चूंकि क्रिएटर है तो वो ये चाहता है कि तुम सबमिट करो, उसकी मानो, और जब तुम उसकी मानो तो इसका मतलब है कि लाइफ एक टेस्ट है तुम्हारे लिए, और लाइफ एक टेस्ट है इसलिए अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाइफ गुजारनी है। और आखिरी फलसफा है कि इस्लाम इज़ द मर्सी टू द वर्ल्ड, इस्लाम जहमत नहीं है। ये दीन का बहुत बड़ा फलसफा है, यकीन कीजिए, जो इसको समझ गया उसके लिए दीन पे चलना आसान है। अगर इस्लाम का कोई भी हुक्म है वो इसलिए नहीं है कि तुम्हें जहमत में डालें या तुम्हें बिला वजह अल्लाह ताला नौज़ बिल्लाह तंग करें। जैसे आप मेरे एम्प्लॉई हैं, मैं आपको कहूँ आज ओवर टाइम भी लगाना है, और मैं आपको कहूँ जी कि तुमने ये भी तुम्हारा काम है, ऑल्दो तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था, ये तो तंग करने वाली बात है ना। आप कहेंगे यार ये तो तंग किया जा रहा है मुझे, ये तो मेरा काम ही नहीं है। तो नमाज तंग करने के लिए नहीं है, या हिजाब या कोई भी दीन का काम वो तंग करने के लिए नहीं है। अल्लाह ने कहा त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ये कुरान इसलिए नहीं आया कि तुम्हें तश्क़ा, मुसीबत में डालने के लिए नहीं आया, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, ये तो तज़किरा है उनके लिए जो कि खशियत अपनाते हैं, अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए एक खजाना आ गया है और वो इस खजाने को रियलाइज करते हैं और वो फिर इस पर चल पड़ते हैं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक हमने तुम्हें रहमत बनाकर भेजा, जहमत बना के नहीं भेजा, इसको जहमत ना समझो। जो भी दीन का हुक्म है वो तुम्हारे लिए रहमत है। यूजिंग ऑल दीज पॉइंट्स आप किसी को भी कायल कर सकते हैं दीन के बारे में कि भाई ये फलसफा है, ये आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी के आउटकम क्या है। जो शख्स अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कायल हो गया, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, वो खुद सेल्फ अकाउंटेबल हो गया, उसको हाथ पकड़ पकड़ के जो है वो चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कल जो है वो एक पेरेंट से मेरी बात हो रही थी, तो वो वालिद साहब बहुत नाराज थे, वो मेरे सामने डांट रहे थे, वो कहते कि मैं थक गया हूँ, इसको हर चीज़ के लिए मुझे लाना पड़ता है, ये खुद कब आएगा। कहते कारी साहब के पास मुझे भेजना पड़ता है, नमाज के लिए मुझे मार के भेजना पड़ता है, फिजिक्स पढ़ाने के लिए मुझे भेजना पड़ता है, हर चीज़ कराने के लिए मुझे भेजना पड़ता है, खुद इसको कब अकल आएगी। तो उनका बड़ा वैलिड कंसर्न है। ओके, तो जब इंसान कायल हो जाता है इस फलसफे का तो वो खुद ब खुद सब कुछ करने लग जाता है, और ऐसी औलाद बंदे के लिए जो है वो रहमत ही रहमत है, जो फलसफा समझ गई। इसलिए बचपन से समझाएं अपनी औलाद को फलसफा के ज़िंदगी का फलसफा क्या है। हम कारी साहब तो लगा देते हैं लेकिन फलसफा नहीं समझाते, वो फिर ऐसा मुसलमान नहीं बनता है ना जो नमाजों को बिल्कुल तरजीह नहीं देता, जो बिल्कुल भी अल्लाह के अहकामात को तरजीह नहीं देता, जो रिलीजन को किसी खाते में नहीं लाता, जो जलीलो ख्वार हो जाता है लेकिन दीन की तरफ नहीं आता, दूसरों की तरफ तो चला जाता है। आज इस सूरह अल बकरा में मैंने जब पढ़ाया किबला चेंज होने की जो हिकमत है, वो अगर आप उसको समझ लें और आप उसको पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा सहाबा को कैसे कैसे टेस्ट किया अल्लाह ने।
اور قبلہ چینج کرنے کا مقصد ہی یہ تھا مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا جائے کہ اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنا قبلہ نہیں چینج کرنا. اگر نالج کے باوجود بھی تم نے چینج کر لیا قبلہ, چینج سے مراد ہے کہ یہودیوں کی بات مانی, کیونکہ یہودی آ کے اکساتے تھے مسلمانوں کو کہ یہ کیا بات ہوئی, کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو گیا. تو اللہ نے کہا نا, ان کی بات اگر سنی تو پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. تو یہی وجہ آج ہر گھر میں پریشانی ہے, ہر گھر میں ایک آدھا بندہ سائیکو ہے, اور ہر گھر میں جو ہے وہ کبھی اولاد سے کوئی پریشان ہے, کبھی مال سے پریشان ہے, کبھی کوئی مصیبت آ گئی, کچھ ہو گیا. یہ ہماری کرتوت ہے. یہ کرتوت یہ ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن نہیں ٹھیک. قبلہ جو ہے وہ کہاں سے لیا جا رہا ہے؟ مشرکین سے اور کفار سے. اور پھر جب ان سے لیا جا رہا ہے تو ذلت ہماری قسمت میں جو ہے لکھی جائے گی. بڑی ہارڈ باتیں ہیں, لیکن یہی فلسفہ ہے دین. جتنا جلدی آپ کو یہ فلسفہ پتہ لگ جائے اتنا اچھا ہے. تو دس از ہاؤ یو ول کنونس سم ون کہ یہ فلسفہ ہے, اس پہ آپ آ جائیں. اور آخری پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, پلیز ریممبر اٹ, کہ دین برڈن ڈالنے نہیں آیا, بلکہ دین کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانیت کو آزاد کیا جائے. اوکے, جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک ہم ملیں گے. جی 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 آپ کی فنڈامنٹل جتنے بھی پوائنٹس ہیں جس میں کانسیپٹ آف اسلام کو ڈسکس کیا گیا ہے, اس میں دس از مائی اوپینین کہ جو کانسیپٹ ہیں ہمارے پاس فرشتوں کے, رسول کے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آخرت کے, تھوڑی سی یہ بھی انکلوڈ کرتے ہیں جو کہ اسلام کو کمپلیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر تھرڈ پرسن پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو ایگزسٹنس آف دا کریٹر, آئی کین گیو یو این ایگزامپل آف کرسچینٹی کہ ایگزسٹنس آف کریٹر وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. سبمیشن ٹو دا کریٹر ان کا ایک سیکٹر ہے جو کہ اسپرٹ ڈیپینڈ کرتا ہے, رائٹ. لائف فار دیم از آلسو ٹیسٹ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں سے بچیں.